Hello, welcome to Ventilator Vibes. Today I'll be talking about a very important monitoring and basic ASM monitoring called the capnography. Okay, capnography is nothing but it is the detection and quantification of end-tidal CO2 during respiratory cycle in general anesthesia as well as in critical care in ICU. Okay. Now, what does capnography tells us? Capnography tells us it is the physiological process. It shows the physiological process like ventilation, pulmonary blood flow, and also the aerobic metabolism. Okay. With SpO2, capnography, both capnography and SpO2 together, they prevent up to 95% of the mishaps during OT as well as in ICUs. Okay, and the other important thing is that capnography is the gold standard for verification of the endotracheal tube placement in trachea. ठीक है, अगर प्रॉपर ग्राफ बना तो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा हमेशा एंड टाइडल CO2 ही रहेगा, जो कैप्नोग्राफी ही रहेगा. ठीक है, हम जो ऑस्कल्टेट करते हैं आफ्टर इंट्यूबेशन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी ट्यूब है वो कहीं कुछ ज़्यादा आगे या पीछे ना रहे. आगे पीछे का मतलब है कि एंडोब्रोंकियल तो नहीं है या फिर इक्वल बोथ लंग बेसिस में हमारी एयर फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है, सो गोल्ड स्टैंडर्ड इज ऑलवेज योर EtCO2 एंड बाय 5-point chest auscultation we verify the depth of the endotracheal tube. Okay, so this was the basics of capnography. Now moving further, we must understand few terms. Number one is capnometry. Capnometry is nothing but it is the measurement and the numerical display of CO2 concentration during respiratory cycles. Okay, simple. Now capnometer is the device that performs the capnometry. Right? Capnograph is the graphical recording of CO2 concentration versus time. Capnograph is the device that generates the waveform, and the capnogram is the waveform displaying the exhaled CO2 in expiratory and inspiratory phases. Okay, अब हमने बेसिक समझा और ये बेसिक्स जो टर्म्स हैं वो ख़त्म करी. अब हम बात करते हैं कि ये हम जो से EtCO2 है, जो हमारा एंड टाइडल CO2, ये मेज़र कैसे होता है. मेज़र होने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. Number one is infrared analysis, mass spectrometry, Raman spectrometry, gas chromatography, and photoacoustic spectrography and chemical calorimetry analysis. But out of this, the most common and widely used is your infrared analysis. Okay. अब जो infrared analysis है इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं. बेसिक प्रिंसिपल ये है कि any gas mixture with two or more dissimilar atoms in the molecule have their own specific and unique infrared light absorption spectra. इसका मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल लो, ठीक है, जो डिसिमिलर एटम्स के हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है. अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सिमिलर एटम्स है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुई, ठीक है, तो ये सिमिलर एटम्स है. अब दो डिसिमिलर एटम है तो इन दोनों की इंफ्रारेड एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा दोनों का अलग अलग है. ठीक है, ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है. और इसी प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए हम इसमें इस कैप्नोग्राफी से या फिर इंफ्रारेड एनालिसिस से हम कैप्नोग्राफी और एंड टाइडल CO2 हम किसी की मेजर कर सकते हैं. साथ में ये हेल्प करता है हमें वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट की कंसंट्रेशन को भी पता करने में. ठीक है, जो एनेस्थेटिक गैस मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन काम कैसे करता है. तो समझ लेते हैं, ये हमारा एक चेम्बर है. ठीक है, एक तरफ से हमारा लाइट सोर्स है या फिर बीम ऑफ लाइट जहां से पास करेगी. ठीक है, दूसरी तरफ हमारा जो सरफेस है वो फोटो अब्जॉर्प्टिव सरफेस है और बीच में हमारी गैस है. ठीक है, अगर बीच में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो more light will be absorbed by the carbon dioxide molecule and less light will be absorbed by the photo detector. ठीक है, अगर कम CO2 होगी तो ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करेगा. अब जो फोटो डिटेक्टर पे लाइट अब्सॉर्ब होगी ये एक यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करेगा
जो आपको मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। ये एक सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल समझने के बाद अब ये देखते हैं कि कैप्नोमीटर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जो कैप्नोमीटर है वो हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहला साइड स्ट्रीम एनालाइजर और दूसरा होता है मेन स्ट्रीम एनालाइजर। साइड स्ट्रीम एनालाइजर क्या है? साइड स्ट्रीम एनालाइजर क्या होगा? जो मॉनिटरिंग होगी, जो क्या कहते हैं, सैंपल लिया जाएगा, इसमें से क्या होगा, ब्रीदिंग सर्किट से, पेशेंट की ब्रीदिंग सर्किट के पास से सैंपल लिया जाएगा और वो मॉनिटर के पास हमारा कैलकुलेट होगा। मेन स्ट्रीम में क्या होगा, जो हमारा मशीन एंड होगा और पेशेंट का ब्रीदिंग सर्किट होगा, उसके बीच में हमारे पास ये इंफ्रारेड एनालाइजर होगा, ठीक है। तो साइड स्ट्रीम एनालाइजर क्या करेगा? द पोर्शन ऑफ गैस बीइंग मेजर्ड इज एस्पिरेटेड फ्रॉम द सैंपल थ्रू द सैंपलिंग ट्यूब, ठीक है, एंड द मेन यूनिट इज अवे फ्रॉम द पेशेंट एयरवे। सबसे सिंपल सी चीज ये है, जो साइड स्ट्रीम एनालाइजर है, जो हमारा मेन यूनिट है, जहाँ पे कैप्नोमीटर जो होता है वो हमारा पेशेंट के एयरवे से काफ़ी दूर है, वो साइड स्ट्रीम एनालाइजर है। और जो ब्रीदिंग सर्किट और जो पेशेंट और ब्रीदिंग सर्किट के बीच में है वो हमारा मेन स्ट्रीम एनालाइजर है, ठीक है। अब साइड स्ट्रीम एनालाइजर होगी तो एक साथ में सैम्पलिंग ट्यूब होगी, हम सब ने वही देखी है, हमारी ओटीज में भी वही होती है। अब उसकी कुछ प्रिक्यूलरीज हैं, जैसे कि जो ट्यूब की लेंथ है इट शुड बी ऑफ 6 फीट। गैस एस्पिरेशन, ये कितना गैस एस्पिरेट करती है? इट एस्पिरेट्स अराउंड 30 to 250 ml पर मिनट, ठीक है। कुछ साइड स्ट्रीम एनालाइजर में वाटर ट्रैप भी अवेलेबल होता है, ताकि हमारी जो रीडिंग आएगी तो उसके अंदर हमारा वाटर वेपर इंटरफेयर ना करे हमारी CO2 रीडिंग से, ठीक है। अब जो साइड स्ट्रीम एनालाइजर है, इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो बहुत ही लाइट वेट है, मिनिमल डेड स्पेस है, ठीक है, और मल्टी गैस मॉनिटरिंग भी इससे आप पॉसिबल कर सकते हैं। मल्टी गैस मॉनिटरिंग में हमारे पास EtCO2 के साथ साथ हम एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन गैस, जिसे हम एनेस्थीसिया गैस मॉनिटरिंग कहते हैं, तो उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एंड देर आर लेस चांसेस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन द पेशेंट्स, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज ऐसी है कि अगर सैंपल लाइन में प्रॉब्लम हुई तो हमारी CO2 जो डिस्प्ले होगी उसमें दिक्कत आएगी। कैलिब्रेशन विद द स्टैंडर्ड गैस इज रिक्वायर्ड एंड ट्रांसपोर्ट, जो सिस्टम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट है, उसमें डिले आ सकता है, ठीक है। तो ये साइड स्ट्रीम एनालाइजर है, ये देखिए, ये पेशेंट एंड, ये हमारे पास यहाँ पे पेशेंट एंड रहेगा, वहाँ से ये अटैच रह के ये 6 फीट की ट्यूब है और ये एंड मशीन एंड है, ठीक है। सो दिस वाज साइड स्ट्रीम एनालाइजर। अब बात करते हैं मेन स्ट्रीम एनालाइजर की। मेन स्ट्रीम एनालाइजर ये देखिए, ये पेशेंट है, पेशेंट और सर्किट के बीच में ही है यहाँ पे, ठीक है, मेन स्ट्रीम एनालाइजर, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम एनालाइजर काम कैसे करता है? इट मेजर्स द गैस बाय यूजिंग अ सेंसर लोकेटेड डायरेक्ट इन द गैस स्ट्रीम बिटवीन द ब्रीदिंग सिस्टम एंड द पेशेंट, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही ब्रीदिंग सिस्टम के और पेशेंट के बीच में है, तो देयर इज फास्ट रिस्पॉन्स, नो गैस इज रिमूव फ्रॉम द ब्रीदिंग सर्किट से कोई गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, अनलाइक उसके अंदर 30 to 250 ml पर मिनट का गैस एस्पिरेशन होता है, ठीक है। वाटर एंड सिक्रीशन कॉज नो प्रॉब्लम, क्योंकि बिल्कुल पास में है, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट इज क्वाइट हैवी, ठीक है, किंकिंग मे कॉज किंकिंग ऑफ ET ट्यूब एंड हैवी होने के साथ साथ ये डेड स्पेस भी बढ़ा देता है पेशेंट का, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव ऑप्टिकल सेंसर एंड देयर आर सम केसेस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ थर्मल बर्न्स, राइट। तो ये तो थी बेसिक थ्योरी पार्ट। अब जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो देखते हैं। सो दिस इज हाउ व्हाट अ नॉर्मल कैप्नोग्राफ लुक्स लाइक, ठीक है। इसके हमारे कई फेजेस होते हैं। सो दिस इज फेज 1, फेज 2, this is plateau phase 3, this is phase 0 and again 1, 2, 3 and 0, ठीक है। So what is phase 1? This is phase 1 is exhalation of air from the dead space and from central conducting airways, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे डेड स्पेस के अंदर जो भी एयर एक्सेल होगी, ठीक है, ये वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट।
फेज 2 जो ये वाला फेज है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी अपस्ट्रोक। इसमें क्या होगा, देयर इज सैम्पलिंग ऑफ ट्रांजिशनल गैस बिटवीन द एयरवेज एंड द एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ पे डेड स्पेस की एयर यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद जो एयरवेज और एल्वियोलाई के बीच की एयर का जो सैम्पलिंग होगी वो यहाँ पे होगी। दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी अपस्ट्रोक। ठीक है, अब जो थर्ड फेज है, दिस इज कॉल्ड एल्वियोलर प्लेटो। थर्ड फेज इज कोरस्पॉन्ड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलर कंपार्टमेंट। अब एल्वियोलाई में जितनी भी गैस होगी वो हमारा फेज 3 को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारा है प्लेटो फेज। ठीक है, और फेज 4 हमारा तब आएगा, फेज 4 भी कहते हैं इसको कई जगह, और ये फेज 0 है। फेज 0 क्या है, हमारा यहाँ पे इंस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे डेड स्पेस और कंडक्टिंग सिस्टम की गैस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हमारे जो एयरवे कंडक्टर हैं और अप टू एल्वियोलाई उसके बीच ही गैस है। दिस इज योर एल्वियोलर गैस। एंड यहाँ पे ये जो फेज 0 है, दिस इज आवर इंस्पिरेटरी फेज, यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एंगल्स बनते हैं। वन इज अल्फा एंगल, अदर इज बीटा एंगल। ठीक है, अल्फा एंगल ये देखिए यहाँ पे, ये रहा, दिस इज अल्फा एंगल। ठीक है, अल्फा एंगल बनता है फेज 2 और फेज 3 के बीच में। ठीक है, इसको एलिवेशन एंगल भी कहते हैं या फिर एंगल टुक ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इट इज बिटवीन फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे है। अब जो अल्फा एंगल है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 100 to 110 डिग्रीज। ठीक है, अगर ये अल्फा एंगल बढ़ जाए इससे, अल्फा एंगल मान लो ये इस तरह से हो जाए, 130 140 से ज्यादा का हो जाए, तो क्या वो रिप्रेजेंट करेगा, इट सजेस्टिव ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि जो नॉर्मल हमारे COPD और एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर यूजुअली अल्फा एंगल इंक्रीज रहता है। ठीक है, अनदर थिंग इज बीटा एंगल। बीटा एंगल ये हमें मिलेगा फेज 3 और फेज 0 के बीच में। दिस इज बीटा एंगल। ठीक है, दिस इज बीटा एंगल। ठीक है, अब इसका जो नॉर्मल एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक, अगर बीटा एंगल बढ़ जाए, बीटा एंगल अगर बढ़ गया, मतलब 90 डिग्री ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है, अगर बीटा एंगल अगर बढ़ गया, इस तरह से बढ़ रहा है, तो रीब्रीदिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो पेशेंट मतलब रीब्रीद कर रहा है, तो इंक्रीज बीटा एंगल इंडिकेटिव ऑफ रीब्रीदिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब जो फेज 3 है हमारा, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये देखो, ये जो फेज 3 है, इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट होमोजेनिक लंग वेंटिलेशन, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो ये एंड पॉइंट है, बिल्कुल एंड पॉइंट है, यहां पे हमारी EtCO2 मेजर होती है। ठीक है, ये कंप्लीटली एल्वियोलाई एयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे थ्रू आउट अपने फेज में कांस्टेंट रहता है, और जो बिल्कुल एंड पॉइंट होगा वहां पे हमारी EtCO2 मेजर होगी। ठीक है, इट इज फ्लैट थ्रू आउट द रेस्पिरेशन एंड द एंड पॉइंट ऑफ फेज 3 वी गेट आर EtCO2। ठीक है, अब इस फेज के अंदर हमें कुछ अबनॉर्मलिटीज मिल सकती हैं। वो अबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो ऑटोपीप, जैसे COPD वाले पेशेंट्स में होता है, ब्रेथ स्टैकिंग जिसमें होती है, तो उसमें ऑटोपीप मिल सकती है। ठीक है, इट में इंडिकेट लंग हाइपर इन्फ्लेशन, एयर ट्रैपिंग और इनकम्प्लीट एक्सेलेशन। ठीक है, अब फेज 3 की अबनॉर्मलिटीज कुछ इस तरह से भी हैं कि अगर फेज 3 का स्लोप बढ़ा, इफ देयर इज इंक्रीज इन द स्लोप ऑफ फेज 3, सो देयर आर सम सर्टेन कॉजेज। अगर पल्मोनरी कॉज की बात करूं, तो पल्मोनरी कॉज कौन कौन सी होंगी, हमारी COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, एज्मा। ठीक है, ये सारी जो डिजीजेज हैं, इट कॉज इंक्रीज इन द स्लोप ऑफ फेज 3। फिजियोलॉजिकल कॉजेज कौन कौन सी होंगी, फिजियोलॉजिकल कॉजेज हमारे पास, जैसे पेशेंट हमारे पास ओबीज पेशेंट है,
या प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें फेज 3 का स्लोप इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। एंड फ्यू एनेस्थेटिक्स ऑल्सो कॉज इंक्रीज इन द स्लोप ऑफ फेज 3। ओके, अब EtCO2 इतना वाइडली इंपॉर्टेंट हो गया है कि ACLS के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। EtCO2 जैसे कि हमें पता है ACLS के अंदर हम जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है तो ACLS का प्रोटोकॉल यही है कि सबसे पहले हमें मॉनिटर्स अटैच करने हैं और ऑक्सीजन लगाना है। मॉनिटर्स अटैच के अंदर हमारे पास दो चीज़ें अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज ऑलवेज ECG, नंबर 2 इज योर EtCO2 मॉनिटरिंग, ठीक है। सो EtCO2 इज ओनली द सरोगेट मार्कर ऑफ कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग CPR. If EtCO2 is less than 10 mmHg during CPR, then the likelihood of successful resuscitation is very less. Okay, अगर it is between 10 to 20 after 20 minutes of CPR, then it is suggestive of good survival outcome, ठीक है। तो ये तो सारी बात हो गई हमारे पास सारी कैप्नोग्राफी की और कैप्नोग्राफ के हमारे फेजेस की। फेज 1 जो हमारी डेड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, फेज 2 हमारे एयरवेज से लेके एल्वियोलाई की गैस को रिप्रेजेंट करता है जिसको एक्सपिरेटरी अपस्ट्रोक कहते हैं। फेज 3 हमारा एल्वियोलाई के अंदर की जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। एंड फेज 0 जहाँ पे इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिफरेंट ग्राफ्स को देखते हैं। नॉर्मल हमने देख लिया है, अब इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। सो सी, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 0। तो ये नॉर्मल है? नहीं। देखो, नॉर्मल EtCO2 की वैल्यू होती है 35 to 45, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम 40 को बेस मान लेते हैं, तो ये 40 से काफी कम है। अगर 40 से कम है तो दिस इज द केस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। अब इसी का ही सेकंड केस देखो, हाई EtCO2 का स्केल ऊपर जा रहा है तो इट इज द केस ऑफ हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अब ये जो हाइट है ये बेस लाइन से ज्यादा है तो इट इज हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्नोग्राफ है। ये देखिए, एक तो ये हाइपोवेंटिलेट हो रहा है, ठीक है, बट ये बेसलाइन को टच नहीं कर रहा है। अगर ये बेसलाइन को टच नहीं कर रहा है दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रीब्रीदिंग, ठीक है। अब अगर आपके सामने इस तरह का EtCO2 ग्राफ आपको मिले तो रीब्रीदिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है? नंबर 1, आपको या तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ा दो, आप रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा क्या करोगे? आप फ्लोज को बढ़ा दो। कभी कभी लो फ्लो एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस करते करते रीब्रीदिंग हो जाती है, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको लो फ्लो एनेस्थीसिया हटाना है, आपको फ्लोज हाई कर देने हैं, ठीक है। नंबर 4, अब ये देखिए, अब यहाँ पे एंगल्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 0। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो अल्फा एंगल है वो 100 डिग्री से तो बहुत ज्यादा लग रहा है, सो इट सजेस्टिव ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे पैथोलॉजी, फॉर एग्जांपल COPD एंड एस्मा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ कैप्नोग्राफ। ये देखिए, अगर इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है, ये टिपिकल पैटर्न है जो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्डियक ऑसिलेशन, ठीक है, ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में मिलेगा। अब ये जो होता है, दिस इज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैप्नोग्राफ जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि पेशेंट आउट आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द क्रोरारे नॉच इन द फेज 3 एंड इट शुड बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फेज 3, ठीक है। फेज 3 के एंड में हमें क्रोरारे नॉच मिल रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के यहाँ पे इंस्पिरेटरी एफर्ट आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फेज 3 चल रहा था। नॉर्मली ऐसा सोचो कि ये फेज 3 ऐसे चल रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद फेज 0 शुरू हो गया, राइट। अब क्या हुआ कि
इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंस्पिरेशन इनिशिएट हो गया, तो वो छोटा सा भी इंस्पिरेशन इनिशिएट होगा तो वो इस फेज में मिलेगा हमें। सो दिस इज कॉल्ड क्रूरारे नॉच। और इसको देख के हम बता, और लगातार ये 2 से 3 या 3 से 4 अगर हमें लगातार ग्राफ्स में दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट आउट है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैप्नोग्राफ। ये ईसोफेजियल इंट्यूबेशन का दिखाता है, ठीक है। अगर आपसे गलती से, या फिर जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं हमारे जितने भी एनएससी से आगे, अगर वो गलती से ईसोफेगस को अगर इंट्यूबेट कर देते हैं तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। ओवर द टाइम ये धीरे धीरे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि जल्दी से ट्यूब को रिप्लेस करके अपने सीनियर को बुलाओ और हेल्प लो उनकी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है। ये हमारा फेज 1 है और ये फेज 3 के अंदर ये अजीब सा ये एक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। इसका बेसिक मतलब होता है जो आपकी सैम्पलिंग लाइन है उसके अंदर लीक है या उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैप्नोग्राफी। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, ठीक है। कैप्नोग्राफी कैसे मेजर करता है, मोस्ट कॉमन साइड स्ट्रीम है, ठीक है। और हमने डिफरेंट कैप्नोग्राफ को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज फॉलो वेंटिलेटर वाइब्स फॉर मोर। थैंक यू।